Bismillahirrahmanirrahim. This is Fayyaz Muhammad. We are discussing advanced web application development course, and today is our 14th lecture in this series. Let's see what we are going to discuss in today's lecture. In today's lecture, we will start from flow control statement, then we will discuss iteration statements, and in iteration statement we will discuss for statement, while statement, do while statement, for each, in statement. These are the topics that we will cover in today's session. Summary of the last lecture. To recap, we also started in last lecture from flow control statement and try to cover types of flow control statements, comparison operators, and logical operators. Next, we discussed Boolean expressions and if statements, that is, if else statement, switch statement, and in the last, we discussed assemblies. Now, let's start our today's lecture. Online resources. As I told you previously, these resources are constantly consulted by me for the creation of these lectures, and you are also required to further enhance your concepts of this course. You must visit these sites. फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था, टुडे फिर हम डिस्कस कर लेते हैं. सी शार्प प्रोवाइड्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स used to control the flow of execution in a program. Selection statements, if else switch case, and iteration statement, do, for each, in, while. और ये आज हमारी today's discussion का topic भी है. Then jump statements, these include break, continue, default, go to, return, yield, and in the last, exception handling statement, through, try catch, try finally, try catch finally. In the next lecture we will also try to cover jump statement and exception handling statements. Now, what are iteration statements? Iteration statement क्या होती हैं, कैसे ये काम कर रही होती हैं? Repeated execution of a statement or set of statements is called iteration. Iteration क्या होती है? अगर किसी स्टेटमेंट को हम बार बार या किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम इटरेशन कहते हैं. होता क्या है, इन डे टू डे प्रोग्रामिंग वी नीड्स a lot of codes, a block of statements to be executed repeatedly depending upon a situation. और ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या यूज करते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले integer number from 1 to 100. In this situation, the simple method is as follows. uh, Write console.writeLine and put 1 over there, and 2, 3, and so on, and our problem will be solved by writing a console.writeLine statement 100 times. Let's suppose if we are required to display integer from 1 to 1000 or 10,000, then we are to write console.writeLine statement 100 to 1000 times. This becomes very laborious, and if we are required to change this for this situation, we use iteration statement or looping statements. Programming languages provide loops. And what are loops? Loop statements or iteration statements are used to repeat statement that you want executed more than once. लूप स्टेटमेंट्स हैं या इटरेशन स्टेटमेंट है, इनका पर्पस क्या है? ये किसी भी स्टेटमेंट को जिसको आप एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए हम फिर लूप स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। सी शार्प प्रोवाइड्स फॉलोइंग इटरेशन स्टेटमेंट दैट काज स्टेटमेंट्स आर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड 0 or more times subject to some loop termination criteria। कि लूप में हम एक क्राइटेरिया तय कर लेते हैं, उस क्राइटेरिया के मुताबिक वो लूप्स उतनी मर्तबा एग्जीक्यूट होंगी जितनी मर्तबा वो क्राइटेरिया फुलफिल होता रहेगा। और वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? नंबर 1 फॉर स्टेटमेंट, नंबर 2 वाइल स्टेटमेंट, नंबर 3 डू वाइल, एंड नंबर 4 फॉर ईच स्टेटमेंट्स। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। For loop. What is a for loop? The for statement executes a statement or block of statement while a specified boolean expression evaluates to true। जब तक boolean expression true evaluate होता रहेगा, एक स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो फॉर लूप की बॉडी में होगा वो बार बार जब तक बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जैसे ही बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बी टर्मिनेटेड एट एनी पॉइंट विद इन द फॉर स्टेटमेंट ब्लॉक। ब्रेक आउट ऑफ द लूप बाय यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। हम कभी भी उस ब्लॉक से अपनी मर्जी से जब वेन एवर वी रिक्वायर्ड हम उससे निकल सकते हैं। अब कैसे निकल सकते हैं? हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, या हम कुछ स्टेटमेंट्स को वहां पे इग्नोर करना चाह रहे हैं कि इस आइट्रेशन पे ये एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, तो इन दिस सिचुएशन वी यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट टू जंप टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। Similarly, following the go to, return, or throw statements are also used to exit a for loop. The for keyword indicates a loop in C sharp। अब जब भी आप प्रोग्राम में for कीवर्ड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये for loop शुरू होने लगा है। अब for loop का फ्लो किस तरह से होता है? वो फ्लो इज वेरी सिंपल। देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये for, यहाँ पे फॉर कीवर्ड यूज किया फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, फिर उसमें हमने इनिट और सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट, और उसके बाद एक फॉर लूप का ब्लॉक शुरू हो गया। और उस ब्लॉक के अंदर हमने फिर लिखा कंडीशनल कोड कि अगर ऊपर ये वाली कंडीशन, दिस इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस conditional code will be repeated again and again, executed again and again depending upon this condition। और उसका फ्लो किस तरह से है? आप आएंगे अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, दिस इज द नेचुरल फ्लो ऑफ कंट्रोल। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? जैसे ही फॉर लूप शुरू होगा, फॉर लूप का बॉडी शुरू होगा, आप क्या करते हैं? कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू, कोई स्टेटमेंट आप इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद फिर कंडीशन को चेक करते हैं। इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इफ condition is true then this code block will be executed and some increment or some decrement or some processing will be done to make this condition true or false। And after performing increment, decrement or any other operation, the flow will be moved towards again condition। If condition remains true then this block of code block will be executed। Otherwise if condition is false then what will happen? A flow of control will jump to the next statement in the program after the for block। No, what is the structure of the for statement? A syntax of the for statement. The for statement defines initializer, condition, and iterator sections. And this is the syntax for. This is reserved word, initializer followed by semicolon, condition followed by semicolon, iterator for उसके बाद ये followed by the end of the parenthesis, and this is the body of the for loop। अब ये इस बॉडी में जो कुछ भी होगा वो इस कंडीशन के मुताबिक बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती।
अब देखते हैं, ऑल थ्री सेक्शंस आर ऑप्शनल, इनिशियलाइजर, कंडीशन और इटरेटर ऑल आर ऑप्शनल, मींस इट्स अप टू यू, आपने किसको यूज करना और किसको यूज नहीं करना। दीज आर नॉट मैंडेटरी। द बॉडी ऑफ द फॉर लूप इज ईदर ए स्टेटमेंट और ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, कि ये बॉडी ऑफ लूप जो हम यहाँ बता रहे हैं आपको, वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, या तो उसमें एक स्टेटमेंट होगी या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। अच्छा, फिर अब देखें इन तीनों सेक्शंस को हम डिफाइन कर लेते हैं। द इनिशियलाइजर सेक्शन, द स्टेटमेंट इन द इनिशियलाइजर सेक्शन आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। इस इनिशियलाइजर सेक्शन में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होंगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फॉर लूप। बिफोर एंटरिंग द loop, we declare and initialize a local variable which can't be accessed from outside the loop but generally used in conditional expression and steps part। मतलब ये जो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो सिर्फ इस बॉडी की हद तक ही एक्सेसिबल होगा। जैसे ही हम इस बॉडी से बाहर जाएंगे, फॉर लूप की बॉडी से, फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, तो ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा। और फिर इस इटरेटर के साथ इसके इंटरेक्शन हो रही होगी, ये तो इसको ये बता रहा होगा कि कहाँ तक इस लूप को चलाना है, कब तक चलाना है, कैसे चलाना है, और फिर उसके बाद हम इस कंडीशन को इवेल्युएट कर रहे होंगे। कंडीशन सेक्शन, अब ये क्या, व्हाट इज दिस सेक्शन इफ प्रेजेंट। देखें दीज ऑल थ्री सेक्शंस आर ऑप्शनल। अगर ये सेक्शन प्रेजेंट होगा, मस्ट बी ए बुलियन एक्सप्रेशन होगा, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड बिफोर एवरी लूप इटरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इनिशियलाइजर सेक्शन एक दफा होगा और ये जो कंडीशन सेक्शन है ये अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगेन एंड अगेन इस कंडीशन को हम चेक कर रहे होंगे। इफ द कंडीशन सेक्शन इज नॉट प्रेजेंट और द बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, या प्रेजेंट नहीं है या बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपको मिल जाता है ट्रू की सूरत में, देन the next loop iteration is executed, otherwise loop is exited। अगर ये कंडीशन जो ये लूप में हमें नजर आ रही है, if this condition becomes false, तो फिर हम लूप से बाहर निकल आएंगे। लास्ट सेक्शन इटरेटर, ये क्या करता है, दिस सेक्शन डिफाइंस व्हाट हैपेंस आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, कि उस लूप की बॉडी में आप क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद फिर ये इस आइट्रेशन को आप किस तरह से आइट्रेटर को प्रोसेस करते हैं। दिस सेक्शन कंटेन जीरो और मोर स्टेटमेंट एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमास, और इनका इफेक्ट फिर उस कंडीशन पे पड़ता है जिसकी वजह से वो कंडीशन किसी वक्त जाकर फॉल्स हो जाती है। जब वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूशन लूप की रुक जाती है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में फॉलोइंग द फॉर लूप स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम वहां से रिज्यूम कर लेता है। नो, लेट्स सी फॉर लूप एग्जांपल। अब यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी तवज्जो के साथ, दिस इज द रिजर्व वर्ड फॉर followed by parenthesis int। you are very much familiar with this keyword। int means integer I। here what we are going to do, here we are declaring a variable int, a variable I of type int and assigning value 0 to it, and in next this int I is equal to 0 will be executed once, then this condition will be checked। here what we are checking, I is less than 10, yes, condition is true, I is less than 10। अब I is less than 10, then what will happen, we will execute the block of code, या execute this statement console dot write line value of I। तो हम I की वैल्यू वहां पर हम क्या कर लेंगे, डिस्प्ले करा लेंगे। अब ये एग्जीक्यूट हुआ, ये थर्ड नंबर पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। इस स्टेटमेंट के बाद हम इटरेटर पे चले जाते हैं। अब इटरेटर में हमने क्या कहा, आई प्लस प्लस आई की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसमें एक का इजाफा किया और अगेन उसको आई को ही असाइन कर दिया। और इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू अब 0 की बजाय 1 हो जाएगी। और फिर जैसे ये इस ब्लॉक पे पहुंचेगा और फौरन जंप करेगा इस कंडीशन पे,
I is less than 10? No, the value of I is 1. Yes, it is also less than 10. Then this statement will be executed, and on next step this iterator will be processed, and the value of iterator will become 2 after adding 1 in it. Now again, when we reach here, because we are iterating statements, after execution of this block the control will be transferred to this condition header of the for loop, and here we will again check condition, either this condition is true or false. Now the value of I becomes 2 and 2 is less than 10. Again we will repeat, and we will repeat these statements up till 10 times, and at next time iterator will add 1 to 10, it becomes 11. Or on 10th iteration, since it is starting from 0, when it is its 11th iteration, the value of I will be 10, and 10 is not less than 10, condition becomes false, and we will ब्रेक आउट ऑफ द फॉर लूप स्टेटमेंट, और अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट, इस ब्लॉक के बाद कोई स्टेटमेंट होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. नो while loop, what is while loop? While statement executes a statement or a block of statement. पहले भी बताया फॉर लूप भी यही करती है, एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है. while a specified boolean expression evaluates to true, जब तक boolean expression को हम इवेल्युएट करेंगे और उसका रिजल्ट हमें ट्रू मिलता रहेगा, ये while लूप चलता रहेगा. एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड बिफोर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, मींस कि हर दफा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम ही द boolean expression is false and there will be no iteration, no repetition, or no more than once execution of the block of statement. Break statement is used to break out of the loop at any point within the while statement block, as in case of for loop. हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से हम किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट पे while लूप के ब्लॉक से बाहर आकर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे को एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में आ जाते हैं. और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये अगेन एज इन केस ऑफ फॉर लूप, सेम इज द केस हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू. लेट्स सपोज हम कोई कुछ स्टेटमेंट्स हर लूप की आइट्रेशन पे चलाना नहीं चाह रहे. इन दिस सिचुएशन व्हाट विल डू, वी विल use continuous statement to jump to the start of the while loop, to the header of the while loop, so that we can ignore some part of the some statements in the while block in the while loop. Otherwise execution continues at the first statement after the loop. अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो फर्स्ट स्टेटमेंट से चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल फ्लो जंप कर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आफ्टर द व्हाइल लूप. Exit a while loop. Following statements go to, return, or throw statements are used to exit at any point from the while loop. Next is flow of while loop. The syntax is very simple. While followed by condition, फिर block of statements. Single statement or more than one statement. अब यहाँ आप देख सकते हैं ये int, हमने एक वेरिएबल n ऑफ टाइप इंट यहाँ डिक्लेयर किया और उसे असाइन कर दिया वैल्यू 0. और यहाँ क्या हो रहा है, while n is less than 5, while n is less than 5 जब तक n की वैल्यू 5 से कम है तब तक वो क्या करे, वो लिखता जाए कंसोल डॉट राइट लाइन n की वैल्यू. अब इनिशियली द वैल्यू ऑफ n इज 0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. And next what we are doing here, we are adding 1 to n, incrementing n. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जैसे ही ये ब्लॉक एंड पे पहुंचेगा, वाइल के ब्लॉक पे पहुंचेगा, इट विल जंप अगेन ऑन द
while condition, and it will check here. If this condition is true, then it will again write the value of n and will add 1 to the value of n. This loop continues till the value of n becomes 5, as 5 is not less than 5. Here the condition becomes false, the boolean expression evaluates to false, and flow of control will jump on the next statement followed by the while block. This is the flow of control. while condition if while condition कोड है, और सिमिलरली जैसे फॉर लूप में था, ये भी उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो चलता जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये ब्लॉक से निकलेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा. Do loop or do while loop. Do loops are also called do while loops. Do statement executes a statement or block of statement while a specified boolean expression evaluates to true. अब यहाँ क्या क्या डिफरेंस आ रहा है कि डू स्टेटमेंट क्या करेगी, एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद आफ्टर दैट इट विल evaluate an expression. If expression is true, then the above block of code will be executed once more. If block of code is expression, boolean expression evaluates to false, then we will jump the next statement following the do while block. इसका मतलब क्या हुआ कि while block में do block में जो statements, एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा होगा वो एटलीस्ट वंस जरूर एग्जीक्यूट होगा, और फिर उसके बाद कंडीशन इवेल्युएट की जाएगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अब वाइल में और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? वाइल ब्लॉक के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो एग्जीक्यूट भी हो. एज फार एज डू वाइल ब्लॉक इज कंसर्न, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट once, and then condition will be evaluated. If the condition or boolean expression evaluates to true, then the block will be executed once more till the expression, boolean expression evaluates to false. अच्छा, ये मैंने आपको सारा बता दिया कि एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप. ए डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स वन आर मोर टाइम्स. एक दफा तो कम से कम डू लूप एग्जीक्यूट होगा, एंड दिस डिफर्स फ्रॉम द वाइल लूप विच एग्जीक्यूट जीरो आर मोर टाइम्स. कि वो जीरो या एक भी दफा नहीं एग्जीक्यूट होगी या कई दफा एग्जीक्यूट हो जाएगी. एंड सिमिलरली ब्रेक स्टेटमेंट इज आल्सो यूज्ड to break out of the loop at any point within the do statement block. कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी इसी तरीके से कि अगर आप प्रीमेच्योरली लूप को दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज करेंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस. इफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू तो पहली स्टेटमेंट जो होगी वहां से वो दोबारा शुरू हो जाएगा. एंड वी कैन एग्जिट फ्रॉम ए वाइल डू वाइल लूप by using the go to, return or through statement. do while loop का syntax किस तरह से है आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे. do, this is the reserve word, फिर ब्लॉक शुरू हो गया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एंड दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय while. while के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये कंडीशन. अब देखें, अब फ्लो ऑफ कंट्रोल डू पे पहुंचा, डू के बाद उसने ब्लॉक शुरू किया, ब्लॉक में जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज ब्लॉक स्टेटमेंट्स वो ब्लॉक से बाहर आएगा और फिर वाइल कंडीशन, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, इस बूलियन एक्सप्रेशन को. इफ द रिजल्ट ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन और कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल जंप ऑन द स्टार्ट ऑफ डू ब्लॉक, और डू ब्लॉक के स्टार्ट पे जंप करेगा और फिर यहाँ से डू ब्लॉक से फिर ये आगे मूव करने की कोशिश करेगा. ये उस वक्त तक इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक हमारी ये वाइल वाली कंडीशन ट्रू रहेगी. अब एग्जांपल देख लेते हैं. आप हम यहाँ क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. नाम उस वेरिएबल का, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम इज n एंड डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज int, और
At the same time, we are initializing it with value 0. Next, there is a do keyword, and then the block of do keyword. In the do block, we are again using console.writeLine to write the value of n on the console, और n में एक का हम इजाफा कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं. After incrementing, we are checking what is the value of n. Now value of n, चूंकि 0 से शुरू हुआ है, अब n में एक का इजाफा हो चुका है, तो वैल्यू ऑफ n कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी. एंड 1 इज लेस देन 5. कंडीशन बिकम्स ट्रू. और फिर ये दोबारा डू से शुरू करेगा और उसको स्क्रीन पे कंसोल पे लिख देगा. ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू 5 नहीं हो जाती. जैसे ही n की वैल्यू 5 होगी, 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स होगी और वो लूप से निकल आएगा. ये अगेन उसी तरह से उसका जो फ्लो या लॉजिकल फ्लो है, वाइल कंडीशन, वाइल किस तरह से काम कर रही होती है. फॉर ईच स्टेटमेंट, दिस इज द लास्ट statement in today's lecture. For each statement, this statement executes a statement or block of statement for each element in an array or an object collection. अब ये क्या, what is an array? Array is a collection of different similar type of data, but more, array is a data structure. It's a collection of many values of similar types. टाइप उनकी सबकी एक ही होगी, लेकिन वैल्यूज क्या होंगी, एक से ज्यादा. अभी तक इन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज एन अरे. या इसी तरह से सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट कलेक्शन. ऑब्जेक्ट कलेक्शन भी नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना और फाइनलाइज करना है कि किसको हम कह रहे हैं. इट कैन नॉट बी यूज्ड टू ऐड और रिमूव द आइटम्स फ्रॉम द सोर्स. मतलब ये फॉर ईच स्टेटमेंट इस कलेक्शन ऑफ अरे या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करने या रिमूव करने के लिए यूज नहीं होती. हाँ, अगर फॉर लूप है तो फिर हम अरे में या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी तादाद, उसमें ऑब्जेक्ट पहले 5 थे 6 कर सकते हैं, उसमें 6 वैल्यू स्टोर थी हम 7 कर सकते हैं, या 7 थी तो 2 डिलीट करके 2 रिमूव करके हम 5 कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच स्टेटमेंट में ये नहीं कर सकते. ऑल द स्टेटमेंट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट. अब ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा? ये लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होगा फॉर द ईच एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एन अरे. उस कलेक्शन में, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज में जितनी वैल्यूज होंगी उतनी मर्तबा वो लूप एग्जीक्यूट होगा. इसका मतलब है, लेट सपोज हमारे पास इम्प्लाई एक अरे में हमने स्टोर किए हुए हैं किसी फॉर्म के और उनकी तादाद 205 बनती है, 205, 205. इट मीन्स our loop will be executed 205 times. And similarly, break statement, similarly breakouts of the loop. Continue statement, go to the next iteration in the loop. वो वापस लूप के हेडर पे जंप करेगी और उस ब्लॉक को दोबारा एग्जीक्यूट करने की एग्जीक्यूट करती है. सिमिलरली, following are the go to, return and throw statement. These are used to come out of uh, for, for each loop या any other loop. How for each loop works? Syntax for each loop. For each, as you are seeing here, for each is reserved word followed by parenthesis. Here elements, element is any identifier and the type of identifier will be in. This is again a reserved word. In iterable item, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होगी, अरे ऑफ वैल्यूज होगी या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, वो एलिमेंट उसकी तरह का हो जाएगा. और उसके बाद यहाँ से फॉर ईच का ब्लॉक शुरू होगा और उसके अंदर बॉडी ऑफ फॉर ईच लूप, यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, वो एग्जीक्यूट होंगी. और ये कब तक लूप चलता रहेगा? जब तक इस आइट्रेबल आइटम के अंदर आइटम्स मौजूद हैं. पहली दफा वो एक, अगर इस लेट्स सपोज देयर आर 5 values in a collection, then this loop will be executed 5 times. Yeah, similarly, if an object collection has
15 objects, then this loop will be executed 15 times. And this is the flow of the for each loop. अब उसी तरीके से सिमिलरली जैसे यहाँ से ये आपका प्रोग्राम का फ्लो चलते हुए आ रहा है, आने के बाद यहाँ से हम देखते हैं कि ये बॉडी ऑफ लूप है, बॉडी ऑफ फॉर ईच लूप एलिमेंट्स रिमेनिंग इन द कलेक्शन, ये आएगा और चेक करेगा हमारे पास वैल्यूज की जो कलेक्शन है उसमें कितने एलिमेंट्स अभी रहते हैं। अगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट पड़ा हुआ है तो वो ट्रू होगा और असाइन नेक्स्ट एलिमेंट इन कलेक्शन टू लोकल वेरिएबल, और फिर बॉडी ऑफ लूप ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब वो देखेगा कि देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो वैल्यू इन द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, और ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जिट हो जाएगा किससे, फॉर लूप से, और जंप करेगा बिलो फॉर ईच लूप या फॉलोइंग द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो फॉर ईच लूप के बाद आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, व्हेन टू यूज विच ऑफ द लूप्स, हमने किस लूप को कब यूज करना है, जनरल से डिस्कशन। फॉलोइंग लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन सी शार्प एज इटरेशन स्टेटमेंट, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ईच, इन, बट व्हेन टू यूज ईच ऑफ द अबव। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि यार भाई हमने इनमें से कौन सी कब इस्तेमाल करनी है। तो एक सिंपल सा मतलब एक जनरल सा जैसे रूल चलता आ रहा है, इफ यू नो द नंबर ऑफ रेपिटेशन या आइट्रेशन देन यू यूज फॉर लूप। अगर आपको प्रीवियसली पहले ही से पता है कि इस लूप ने कितनी दफा इस ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है, तो द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट इज फॉर। नेक्स्ट वाइल, और वाइल को हम कब यूज करते हैं, जब हमें इस तरह की कंडीशन से सामना हो कि या तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा या एक से ज्यादा दफा ये एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में फिर हम वाइल लूप यूज करते हैं कि कंडीशन को चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली डू वाइल, और जैसे कि वाइल में बताया वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं भी हो सकता एज फार एज डू वाइल ब्लॉक इज कंसर्न। डू ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, एक दफा एग्जीक्यूट होगा। और अब आपने देखना है वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ने कम अज कम एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होना है। जब आपको पता लग गया कि हाँ यार इस ब्लॉक को एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होना है, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन we will use do while. Similarly for each in, of there are various situation, there are various collection of arrays, in that situation अगर हमने उस collection of values की हर वैल्यू पर कोई ऑपरेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए कलेक्शन, इन ए लिस्ट, किसी भी लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं, कितने आइटम्स हैं, उतनी मर्तबा अगर कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फॉर ईच और विद इन कीवर्ड। वो इन कीवर्ड हमें एज ए कंडीशन बता रहा होता है कि अभी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं या नहीं है, और इस इन कीवर्ड की मदद से हमें पता लग रहा होता है कि इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है। दिस इज द आंसर टू when to use each of the above. The summary of today's lecture is, in today's session we started from flow control statement, and in flow control statement we discussed iteration statement, in iteration statements we discussed for statement, while statement, do while statement, for each in statement. We have tried to discuss these iteration statement in today's session. Dear student, I hope you will practice these four types of loops yourself, and if you feel any of the problem then let me know.
Dear student, thank you and Allah Hafiz for the next lecture.